brothers and sisters, Jindabad. Now it is very difficult for us to speak in your language, and I cannot even keep translator because I have to rush to the airport. The program was at 10 or 10:30 at the most, I said. It is actually started at 11:30. So nobody is responsible for this because you people have come all the way from the state, and therefore we have to wait for you people. But I request you to understand my speech in the proper spirit. I am now 84, 85. I have been fighting against the system from 1976. So my experience is who is our enemy. ये होट चोरी कौन कर रहा है? ये एनकाउंटर कौन कर रहा है? ये ईवीएम कौन कर रहा है? You have to think. You are capitalists are not our enemies. Only enemies, I am saying, only enemies. Our basic structure, that is Varna Vyavastha, Brahminism is our enemy. But people don't dare to talk. How many bomb swords have RSS done? How many bomb swords? And what Naxalites are doing? They want to finish Naxalite. Who will finish RSS bombers? And who will talk against them? If I say, मैं यदि कहता हूँ, यदि मंदिर बंद करेंगे तो जेल रिकामे हो जाएंगे, जेल में कोई रह नहीं गए। मंदिर का कारण है हम सब जेल में जा रहे हैं, और ये सब स्कूल बंद कर रहे हैं और जेल भर रहे हैं। So what is the reason? Where we go to the basics of this, our problems. You take any problem. Who is selling our property? Who has done all this for 11 years? Who is implementing Manusmriti and not implementing Constitution? I am not going to read all these books, but when you speak against the system, what they say, that Justice Kolse Patil, oh, anything nonsense he speaks. So I have come with the big books to show you that read Dhirendra Jha. He has given full story of RSS. Read his book, Shadow Armies. Whatever RSS we see, it is not even 1/10. It is all hidden. Their agenda is hidden. And you people, actually, every minute you are misled. Media is there, all constitutional institutions captured by them. And since when? They planned it in 1942. Yes, franchise voting will not win elections. So, we have to capture all the organs of the government. And they decided to do it right from 1942. But what was the purpose of establishing RSS? They even planned to kill not only Gandhi but Nehru. Because according to them, whoever comes in the way of Hindu Rashtra should be finished. They have finished Indira Gandhi, they have finished Rajiv Gandhi, and they are going to finish Rahul Gandhi. I told Rahul Gandhi in one-to-one meeting that you are talking against RSS. I am happy because I have been taking this agenda from 76. But हमें मान्यता नहीं थी, तो ये इशू देश भर नहीं जा रहा था। तो ये मान्यता है, इसलिए ये इशू देश भर जाएगा। अभी my purpose of life is over. That is what I told him. At least
He is speaking against the RSS. Not even his party people are not with him. They are not with him. Because nobody dares. What is the reason? It is only selfishness. मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मुझे पद चाहिए, मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए. क्या कर रहे हैं हम? देश जल रहा है और हमारे खुद के लिए हम काम कर रहे हैं. रास्ते पर आने को हम तैयार नहीं है. रास्ते पर आएंगे तो वो गोलियां चलाएंगे. अरे घर में सड़कर मरने के बजाय रास्ते पर आके मरो ना. नहीं तो क्या करें? क्या जिंदगी का पर्पस? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ? और आई हैव स्टडीड आरएसएस हिस्ट्री राइट फ्रॉम देयर इंसेप्शन. They themselves were so confused what to do, because after Mahatma Gandhi came in picture, till Tilak they were safe. They planned that one day or the other we are going to get freedom. And what is our now position in freedom? Because we are 1%, 2%, 3%. Altogether, if they take your business class together, 10%. Thakur, Baniya, not more than 5 to 10%. So they wanted to win elections. They Pune Brahmins sat together and they decided that we will not win franchise election. So क्या करना पड़ेगा? वो स्वामी सरस्वतीनंद आर्य समाज का संस्थापक कौन? उन्होंने भी इनको ये बोले कि हम अभी हिंदू धर्म करें. इनका पहले ब्राह्मण धर्म था, ओनली ब्राह्मण धर्म था. आज भी उनके हिंदू राष्ट्र की मन में व्याख्या है वो ब्राह्मण धर्म की, ब्राह्मण राष्ट्र की. उनको आपसे कोई लेन देन नहीं है. लेकिन हम लोग जब हमारा राइट मांगने लगेंगे, हम आरक्षण मांगते हैं, हम अभी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मांगते हैं, तो ये तो तुमको चुप कैसे बैठाएंगे? तो इसलिए बोलते हैं मुस्लिम आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं. मुस्लिमों का डर दिखा के हम सबको पैरों तले कुचल रहे हैं. और उसका उनके पास शस्त्र है. क्या है? स्वर्ग है, नरक है, 33 कोटि देव है. इसलिए मैं हमारे सभी संतों का दाखला देता हूँ. सभी महावीर से चारवाक छोड़ दो. चारवाक ने तो इनको सबको नकारा था. गौतम बुद्ध, महावीर है, सम्राट अशोक है, पढ़ो उनको. संत रविदास है, संत तुकाराम है, संत कबीर है. अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे मैं कबीर पर लिख रहा हूँ, और लिखा है उन्होंने गिरी. ये संत क्या कहते हैं? नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद. और हम क्या करते हैं? दूसरी बात, हमारे गार्गे बाबा अंते बहादुर थे. वो बोलते थे कि बापानो, देवल में सिर्फ भटजी का पोट होता है, देवल में देव नहीं होता. यदि हम उतना भी करेंगे, मंदिर में जाएंगे, दर्शन लेंगे और वापस आएंगे, तो भी इनका दुकान बंद होता है. लेकिन आज उन्होंने देश ही कैप्चर किया है, तो मंदिर का उत्पन्न की उनको जरूरत नहीं. देश ही कैप्चर किया है, सभी हमारे रिसोर्सेज कैप्चर किए हैं, सभी हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं. कैसी बेच रहे हैं? 100 रुपए की प्रॉपर्टी 10 रुपए में बेच रहे हैं. किसको दे रहे हैं? अदानी अंबानी को. ये किसकी आइडियोलॉजी है? ये आरएसएस की आइडियोलॉजी. बंच ऑफ थॉट्स पढ़ो, पहले से सावरकर पढ़ो, तिलक पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो. वो बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, आप सब सिर्फ 2 जून के रोटी के अधिकारी हैं. नक्सलाइट के खिलाफ लड़ने की जरूरत क्या है? वो तो हमारे आदिवासियों का कल्याण के लिए लड़ रहे हैं. कुछ गलती होगी, वो बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते. क्या आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन मानता है? जब वो बॉम्ब स्फोट करता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मानता है? कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुई तो 4 दिन में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लिखा. उनका जो माउथपीस था उसमें लिखा राष्ट्रीय ध्वज उनको कबूल नहीं है. वो बोलते भगवा है. भगवा किसका है? भगवा भगवान
बुद्ध का है। उनके पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, दे आर जस्ट बोरोइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स। उनके पास एक भी नेता नहीं है दिखाने के लिए कि जो सबको साथ ले सकता है, एक भी नहीं। तिलक का जो स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क है, वो जो उनकी स्लोगन थी वो बहुत डिसेप्टिव थी। ही वांटेड ओनली पेशवाई। उन्होंने क्लियरली कहा था, लेकिन अब आप मुझे लोग बोलते हैं कि तिलक के खिलाफ क्यों बोलते हो? तिलक के वो तो स्वराज्य के लड़ाई में थे। कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे ये बात है ना। सही लड़ाई शुरू हुई वो तिलक या गायकवाड़ वाड़ा, वो राजा गायकवाड़ का वाड़ा था। तिलक कुछ उनके खिलाफ लिखते थे तो बोले चलो ये वाड़ा उसको भिक्षा में दे देंगे तो चुप बैठेगा। इसलिए उन्होंने वो वाड़ा जो बिग है कॉम्प्लेक्स है वो तिलक को दे दिया और उसका नाम तिलक वाड़ा रखा। वो था वो गायकवाड़ वाड़ा। महात्मा गांधी ने ये कांग्रेस को तिलक के क्लचेस से बाहर निकाल के बहुजन समाज को दिया। वही उनका पहला गुस्सा था। गांधी मारने का पहला बीज वही था कि हमारी लीडरशिप ये बहुजनों को दे रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन तिलक वाड़े से या तिलक से बाहर निकाल के तिलक गए, जाना है सबको जाना है, हमको भी जाना है। मैं वही बोला कि हम सब संभाल के रखेंगे, अगले लोग की पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी रखेंगे और देश को लूटने दें उनको। तो ये जो देश के लूटने का तरीका है उनका, वो जब तक हम हमारे घर घर जाके नहीं समझाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। और हर मिजरी, हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस है। कैपिटलिस्ट पर बाद में आते हैं हम, क्योंकि कैपिटलिस्ट अभी देखो ना, हमारी संपत्ति बेच के कैपिटलिस्ट को कौन दे रहा है? आरएसएस ही दे रही है। जो भी बुरा देश में हुआ, हमारे लीडर कौन थे 5000 साल? वही थे। और वो हमें हमेशा ब्लैकमेल करते थे। देखो इस यहाँ कुछ नहीं है, इस धरती पर सब जो कुछ है स्वर्ग में है, नहीं तो नर्क में है। तो ये जब इसको बोलते हैं हम काल्पनिक दुनिया, सभी धर्मों में है। ये काल्पनिक दुनिया जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो हमारे देश का या दुनिया का भी भला नहीं होगा। कौन से देश ऐसे जो सबसे सुखी है अभी? स्वीडन है, नॉर्वे है। 91% लोग ईश्वर को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, मोर देन 91% लोग। और आज उनका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 पर है। हमारा क्या है? हम सभी इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। ये बोलते हैं हमारी 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। अभी इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उन्होंने अभी भाषण नहीं किया रेड्डी साहब ने मेरे लिए, क्योंकि मुझे जाना है और आप 2 दिन बैठ रहने वाले हैं। मैंने बोला था डॉक्टर को, प्राध्यापक, कि मैं आखिरी भाषण को आता हूँ वैलिडिक्ट, ताकि लोग कुछ थोड़े लोग, मेरा भाषण घर जाने वाला है, ब्रेन में जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ। और जब तक ये सिस्टम हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा भला नहीं हो सकता। भला किसी भी जाओ, तुम कहाँ भी जाओ, जो शाश्वत विचार है यदि वो हम लोगों को नहीं देंगे और गुड्डी गुड्डी बातें करेंगे तो लोगों को क्या मिलता है? और ये शाश्वत विचार देने के लिए हम मैं बॉर्न कम्युनिस्ट हूँ सर। मैं खुद मजदूर था, मुझे सिर्फ 36 नया पैसा पर डे मेरे आमदनी थी। मेरे माँ को 62 नया पैसा और मेरे पिताजी को 88 नया पैसा। मेरा संपूर्ण गांव कम्युनिस्ट। ये अन्ना भाऊ साठे, ये अमर शेख, ये हमारे घर आके रहते थे और एक ही कपड़ा था उनके शरीर पर, वो कॉमन बार जिसको बोलते कॉमनवेल्थ होती है देहात में, देहात के बाहर टॉयलेट। मैं उनको जगह दिखाया कहाँ जाना है, मैं छोटा था और वहाँ जाके बावड़ी पर नहाए, कपड़े धोए पहले, वो सुखाने को रखे, नहाए, वही कपड़े डाले, काम शुरू। ये अभी जो बच्चे गा रहे थे, इतना उनका अभ्यास था। और इतने बड़े, जिस कम्युनिस्ट की रशिया ने
सराहना की, वो अन्य बहुत सारे को हम यहाँ पूछते रहे। भाई इसका मतलब क्या है? तो हमें बेसिक हम नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, देश समाज को कहाँ ले जा रहे हैं हम? भाई कई कम्युनिस्टों के साथ मेरा डायलॉग, उनको हमने बोला करकरे को किसने मारा, इसकी एक किताब उनको दी, उन्होंने देखा तक नहीं, खोल के देखते ना, जैसे अभी एक किताब आप देख रहे थे, मैं ये देख रहा, खोल के भी नहीं देखा। और सबसे बड़ा नेता था कम्युनिस्ट। मैं बोला उनके मिसेस को कि आपके हस्बैंड तो देखते थे नहीं है, करकरे को क्यों मारा, किसने मारा? गांधी मारने की जो कॉन्स्पिरेसी थी उससे कई गुना बड़ी कॉन्स्पिरेसी करकरे को मारने के पीछे क्यों थी? तो करकरे ने उनके 18 बॉम्ब स्फोट जो इन्होंने करे, और नाम किसका लिया? मुसलमानों। अंदर कौन गया? मुसलमान गया। क्यों किए? तो इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो जो प्रज्ञा ठाकुर है, वो जो कर्नल पुरोहित है और उनकी गैंग थी, वो आशीमानंद तो बोलता है कि पांच बम स्फोट तो भागवत के कहने पर किया। मैं तो उसके आगे जाकर कहता हूं भागवत पाकिस्तान से पैसे लेता है। इनको बिल्कुल, मैंने दिल्ली में कहा था, मुझे पत्रकार ने पूछा, लोगों ने पूछा कि आप कैसा बोल रहे हैं, मैंने कहा भागवत को पूछ ले तो मुझे, क्योंकि कर्नल पुरोहित का कन्फेशन है कोर्ट में। वो इंद्रजीत, वो है उनका नेता, और वो आईएसआई से पैसे लेते। तो इनको पैसे किसी के, इनको पाकिस्तान से झगड़ा नहीं है, इनका मुसलमानों से झगड़ा नहीं है, कीप इट इन माइंड। इनका झगड़ा है हिंदुओं के नीचे के लोगों, क्योंकि वो इक्वालिटी मांग रहे हैं और वो इक्वालिटी उनको देनी नहीं है। हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मण राष्ट्र किस लिए चाहिए? तो उनका राज चाहिए उन्हें। जो मैं पहले कहा, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो देश के मालिक है और हम सब 2 जून के लिए रोटी के अधिकारी। क्या किया 11 साल में मोदी ने? 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान दे रहा है। सब हमारे रिसोर्सेज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिए हैं, और ये देने का मकसद क्या है? वही आइडियोलॉजी, गोलवल करके आइडियोलॉजी। अरे गोलवल करके कई किताबें इन्होंने गायब करी है। 66 में लिखे हुए गोलवल की किताबें हैं, वो इन्होंने गायब करी, क्योंकि उनका सही जो मकसद है आरएसएस का वो बाहर ना आए। तो भी कितने छिपाएंगे? हमारे शमसुल इस्लाम करके हमारे दोस्त है, वो बोलते हैं मैं तो सिर्फ आरएसएस का रिकॉर्ड पढ़ के ही बोलता हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं लेता। आरएसएस के खिलाफ जो लिखते हैं उनको भी मैं फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ आरएसएस का रिकॉर्ड लिखता हूँ। हेगडेवार कौन था? एक ब्राह्मण फैमिली में वो पीड़ित था, उसका भाई गंजड़ी था, तो वो गांजा कसने के लिए इसको अपॉइंट करता था, इसको, और नहीं किया तो उसको सोने नहीं देता था। ये पीड़ित ब्राह्मण लड़का घर छोड़ के बाहर आया। देखो तो उन्होंने क्या करना चाहिए था? उन्होंने तो ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ना चाहिए था ना। उन्होंने मुसलमानों का शक्ल निकाला। अरे मुसलमान, कई बार मैं बोल चुका हूँ और मैं सिद्ध करने को तैयार हूँ, उनके साथ चर्चा करने को तैयार हूँ कि मुसलमान उनके दुश्मन नहीं है। हम सब हिंदू जो है नीचे वाले, वो सब उनके दुश्मन है। तो आरएसएस किसके खिलाफ है? मुसलमानों के खिलाफ है। अरे हम हिंदुओं के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है, वो देश के संपत्ति के खिलाफ है वो। और ये अभी मैंने देखा था पोस्टर नीचे, नक्सलाइट को मार रहे हैं और बोलते हैं नक्सलाइट खत्म हो गए। अरे तुम जिन्होंने बॉम्ब स्फोट किए, जो पाकिस्तान से पैसे लेता है, हमको वो अर्बन नक्सलाइट कहते हैं। वो जो भीमा कोरेगांव की बात अभी गाने में आई थी कहीं, और एल्गार परिषद की हमने ली थी, तो हमको तो तब से वो फडणवीस जहरीला संगी, मोदी शाह जहरीले संगी, इनको हृदय नहीं है। आरएसएस वालों को हृदय नहीं, तुम देख लो, ये इतने क्रूर है, मानवता विरोधी है।
पब्लिक के खिलाफ है तो भी वो राज कर रहे हैं हमारी मूर्खता के कारण। हम मरने को डरते हैं, हम रास्ते पर आने को डरते हैं, तो वो तो वही करेंगे ना जो उनको चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक हमारे गार्गे बाबा सभी संत, ज्ञानेश्वर ने कहा है, अभी वो मराठी में यहाँ बोल गए, ईश्वर नहीं है तो पूजा किसकी करनी है, भगवद गीता ने कहा है। तो क्या करें हम, जो हमारे लिए है वो तो लेना चाहिए ना। श्री कृष्ण कहता है कि मुझे ना अस्तित्व है, न मुझे भूख है, न मुझको जानता हूँ, मैं कुछ देने की जरूरत है। तो यदि वो निर्गुण निराकार है, पहला आंदोलन चारवाक ने किया, उसके बाद गौतम बुद्ध है, महावीर है, अभी महावीर के आज जो वंशज है वो तो उनके पीछे भाग रहे संपत्ति के लिए। अंबानी अदानी क्या है, वो क्या देश की सेवा करते हैं और सब संपत्ति हमारी सार्वजनिक संपत्ति उनको दे दी है। और इतने कि जियो का उद्घाटन मोदी करता है और बीएसएनएल को खत्म करता है। हमको गुस्सा नहीं आता। बीएसएनएल सबसे पहले अच्छा मोबाइल देने वाले थे, वो प्रमोद महाजन आया, वो 13 दिन का पहले सरकार और बाद में वो सरकार चली थी वो, तो उन्होंने बीएसएल बनाने वाले मोबाइल को प्राइवेट कंपनी को दिया। नहीं तो 10,000 में परमानेंट मोबाइल देने वाले थे वो, परमानेंट, चलो जितना इस्तेमाल करो। तो ये करने का उद्देश्य क्या है, फिर वही आता है आइडियोलॉजी कि आपको नहीं मिलना चाहिए देश का बेनिफिट, आप उनके पाव के तले रहने चाहिए, इसलिए वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने को तैयार। और सिर्फ स्वर्ग नरक रिपीट करता हूँ, तो इससे हम बाहर नहीं आएंगे और सोचेंगे नहीं इनका इतिहास क्या है। तो हम क्या करेंगे, ब्राह्मणवाद विरुद्ध बहुजनवाद है, और ये ब्राह्मणवाद हमें कुछ सुधरने देता, हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता। अभी जो हमारे सब स्कूल बंद हो गए, इसका मतलब क्या है, स्कूल बंद गए होते तो जेल भरेंगे, यदि मंदिर बंद होंगे तो हमारे सब जेल खाली होंगे, लोग बाहर आएंगे। ये मंदिर के नाम, ईश्वर के नाम आपको एक जो गुमराह कर रहे हैं। अभी अभी करंट इशू है वंदे मातरम। कल अमित शाह के सभी पेपर में लेख था कि वंदे मातरम कैसा अच्छा गीत है, अच्छा गीत है। क्या इन्होंने कभी गाया था क्या, इनके पूर्वजों ने कभी गाया था क्या, हिम्मत थी क्या उनकी? स्वतंत्रता आंदोलन में जाना नहीं जाना एक बात अलग है। मैं भी नहीं गया क्योंकि मैं 42 में जन्म हुआ मेरा, तो छोटा था। मेरे पिता नहीं गए क्योंकि वो मजदूरी करते थे, 2 समय की रोटी हमको खाने के खिलाने के लिए वो बेचारे दूसरे के खेतों में काम करते थे, मैं भी करता था, तो वो नहीं गए। लेकिन इन्होंने नहीं गए पर यहाँ तक ठीक है, विरोध किया। हेगड़ेवार गांधी के साथ थे, और हेगड़ेवार जब गांधी के साथ थे तो गांधी को उन्होंने पूछा कि आपका ध्येय क्या है, हिंदुओं के बारे में आपकी राय क्या है? तो गांधी बोले यह देश सबका है और सबके लिए काम करूंगा। तो फिर इन्होंने सोचना क्या, अरे ये तो गांधी, तो इसके स्वतंत्रता आंदोलन का फायदा क्या है? अभी आपको बोलते हैं कि हेगड़ेवार भी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए थे, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वो खिलाफत की मूवमेंट चल रही थी, वो खिलाफत की मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए रास्ते पर आए थे। शमशुल इस्लाम पढ़ो, ये धीरेन्द्र झा पढ़ो, और उन्होंने सबूतों के साथ दिया है। क्योंकि लड़ाई किससे, मुझे मालूम नहीं कि वो मुझे बाहर जाते मारेंगे, मुझे मालूम है ना। तो भी मैं बोल रहा हूँ कि मरने को डरने से, जो मरने को डरता है वो हर दिन मरता है। तो तुम मरो हर दिन, मैं एक बार मरूंगा। मुझे बहुत संताप होता है, इसलिए होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और गलत रास्ता है ये बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। मैंने पहली बार बोला था कि
भाई जो देश सुखी है, सर्वसुखी देश है, और जिनके निर्देशांक सबसे हाई है, हमारे सभी निर्देशांक सबसे नीचे है, पर कैपिटल इनकम नीचे है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे है, हमारे पास क्या है? और क्यों नहीं? जबकि हमारा देश कुदरती संपत्ति में सबसे आगे है, दुनिया में आगे है। हमारा ये सनलाइट, हमारी हवा, हमारा पानी, और जमीन में जो हमारे खनिज है। अब ये जो नक्सलाइट को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? तो जमीन में है संपत्ति, वो बेचनी है अदानी अंबानी को। आदिवासियों को वनवासी कहकर, आदिवासी का मतलब क्या है? खुद सरदार पटेल ने कहा था कि आदिवासी से हमने पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल ड्राइवर्स है, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करी, वो पहले फाइट आउट करे। मुसलमान कौन है? अभी एक लिस्ट है, उस मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दर मरने के लिए मुसलमान है, सिख है, पिछड़े हैं, दलित है, सवर्ण है। छोड़ो, ये हमारे आंकड़े गलत हो गए, लेकिन एक भी आदमी आरएसएस का आदमी स्वतंत्रता आंदोलन में गया, जेल में गया या मरा, उनकी बिल्ली हो, कुत्ता हो, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मरा, ये कोई बोलेगा कुछ? वो बोलते ब्राह्मण भी आंदोलन में थे, लेकिन वो ब्राह्मणवादी नहीं थे। यहाँ भी कोई ब्राह्मण हो गया ना, वो ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मणवादी हर जाति में है जो अपने जाति को चूसता है। हमारे संविधान का मकसद ही क्या है? हम सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय देने के लिए बद्ध है, और इस संविधान में सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बंधुता। दैट इज, यदि हमने बंधुता नहीं, जाति के कारण हम कहाँ एक दूसरे को बंधु मानते? किसने लगाई ये जाति हमारे पीछे? भागवत खुद कहता है हमने लगाई। और ये हमें भी मानते नहीं, झूठ बोलता है। मानते नहीं तो एक दलित को करो ना आरएसएस का प्रमुख, एक मुसलमान को करो आरएसएस का प्रमुख। तुम मानते नहीं ना, तो वो पर्टिकुलर ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मण है, ये देशिस्त लगता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइट होता हूँ, इसलिए होता हूँ कि मुझे आपको एक्साइट करना है। इस उम्र में मैं एक्साइट होता हूँ। यहाँ तो युवा दिखते नहीं, सब 50 के बाद के लगते हैं। तो भी आपको ही इन 50 के नीचे के लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हमने देखा है भारत, और हम देख रहे हैं भारत, हम सबसे पीछे क्यों हैं? वर्ण व्यवस्था के कारण है। ये सब हमारे आक्रमण करते थे, वो क्यों आए यार? तो लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रिय को दिया था, वो भी झूठ है, क्योंकि वो बोलते हैं कि परशुराम ने 3 बार या 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय किए। तो निक्षत्रिय के तो क्षत्रिय कहाँ रहे? वो तो एक रेफरेंस ऐसा भी है कि पृथ्वी निक्षत्रिय की, और हम जो निपज है वो सब ब्राह्मणों की। इतना ही नहीं, उनका कहना है, गोलवलकर का गुजरात यूनिवर्सिटी में भाषण है, गोलवलकर का गुजरात यूनिवर्सिटी में भाषण है। वो तो आते समय चित्पावन ब्राह्मण जब आए तो उन्होंने श्रेयांक को लाया नहीं साथ में। वो श्रेयांक को हमेशा हेट करते, मनुस्मृति पढ़ो, शूद्रों को हेट करते, हम सबको हेट करते हैं, मनुस्मृति का राज चाहिए। तो गोलवलकर कहते हैं भाषण में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ की नस्ल, एक नस्ल एक बिग फ्रॉड है, कई नस्ल वस्ल कुछ नहीं है, सब मिक्सर है। तो नस्ल शुद्धिकरण के लिए हमने नमुंद्री ब्राह्मणों को
नॉर्थ से साउथ भेजा। केरला में पहले नमुद्री ब्राह्मण क्या करते थे, कौन बोलेगा? क्या था लॉ? क्या था लॉ? था किसी की भी शादी हो, वो लड़की पहले उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि शुद्धिकरण चाहिए, वो वंश का शुद्धिकरण होना है इसलिए। और वो बोलते हैं गोलवरकर हमने भेजे, तो उनका मकसद क्या है? सावरकर लिखते हैं इस देश में जो रहता है वो आधे बीच का है, नहीं है तो हमारा नहीं। सावरकर तो ऐसा लिखते हैं कि ईसाई और मुस्लिम हमारे दुश्मन, और कैसे कैसे उनको निपात कैसा करना चाहिए। तो उनके जो डर गई नहीं बेटी, डरो मत, उनके पेट फाड़ना चाहिए। जोर स्त्रियाँ उनके लेडीज है, उनके पेट फाड़ना है, बच्चे उनके मारना है। वो गुजरात में किया है। मोदी शाह कौन है? गोधरा उन्होंने किया, गुजरात दंगे उन्होंने करे, और हिंदू सम्राट बन गए, हिंदू हृदय सम्राट बन रहा है। मैं हिंदुओं को विनती करता हूँ, यार हिंदू धर्म में तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या लायकी तुम्हारी? वो सब हम ब्राह्मणों को सर पर लेके हम हिंदू धर्म में क्या कर रहे हैं? और उन्होंने गुजरात में दंगे किए, मुस्लिमों के गर्दर में भी शाह, उसकी कौन एक लड़की सुप्रीम कोर्ट तक गई, वो उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा काटा, और वो आरोपी और कई आरोपी, जब ब्राह्मण, एक मनुस्मृति का लॉ है कि ब्राह्मण कभी शिक्षा के पात्र नहीं होता, उन्होंने कुछ भी किया तो उसको छोड़ना चाहिए, वही किया उन्होंने। तो मोदी शाह को तीस्ता सेटलवार करके, मेरी अच्छी दोस्त भी है और सुनी सोरी जानती है उसको, वो तीस्ता सेटलवार ने एक प्राइवेट कमीशन अपॉइंट किया सामाजिक, उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत, जस्टिस सुरेश सेक्युलर जजेस थे, और नाम था बड़ा उनका, प्रामाणिक जजेस थे, देश भर में नहीं प्रदेश में भी थे। जस्टिस सावंत वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे 6 साल, और दुनिया भर में उनके भाषण हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रेस ने एक लफ्ज भी नहीं उनके लिए प्रिंट किया, एक लफ्ज नहीं। वो देश के भी 6 साल प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष थे और दुनिया के भी प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने इंक्वायरी करी, वो रात को 3-3 बजे तक काम करते थे। आयोग का निष्कर्ष क्या है? आयोग का निष्कर्ष है कि मोदी एंड हिज फ्रेंड्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। यदि कांग्रेस में आरएसएस सेल नहीं होता तो मोदी शाह जेल में होते, हमें ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, हमारा सपना ही कभी पूरा नहीं होता कि इनको ख़त्म कैसे करेंगे। वो बराबर कैसे भी, जैसे बिल्ली है कैसे भी गिरती है तो पाँव पर गिरती है, वैसा आरएसएस का है। लेकिन तो भी हमें नामों में होने की जरूरत नहीं। सबसे उनका खतरनाक रिकमेंडेशन था कि किसी हालत में मोदी और उनकी गैंग दोस्त उनको किसी भी संवैधानिक पद पर बिठाना नहीं, ये रिकमेंडेशन था। उसका क्या हुआ? उन्होंने सबको संविधान संस्था से बाहर निकाला और खुद बैठ गए। तो ये जो मैंने बोला 1942 का प्लान था उनका कि राज तो हमें करना है, देश के मालिक तो हम हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सभी संविधान संस्था पर हमें कब्जा लेना चाहिए। मैं जुडिशरी में था, मैंने देखा है कि मुसलमानों के बारे में ब्राह्मण जजेस क्या बोलते थे, क्या रवैया था उनका, मैं जानता हूँ। और जब मैं बोला कि अरे हम ईश्वर के बराबर है, हम ऐसा कैसे करेंगे, मुसलमान हिंदू कैसे करेंगे हम जजमेंट ये लिखते बेंच पर बैठ के, तो फिर वो आप तो वकील है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट
जज नहीं था, मैं लॉयर था, लेकिन मेरे सोशल वर्क के कारण भगवती, कृष्णा अय्यर, ये सब ने बोला कि खाला तू जज बनना चाहिए। मैंने कहा आरएसएस मुझे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं आरएसएस से पढ़ना लिया 76 से। आरएसएस का चीफ जस्टिस था वहाँ, वो नहीं मान रहा था, तो उसकी ट्रांसफ़र करी भगवती ने, और हमारा चीफ मिनिस्टर तो वसंत दादा ने ट्रांसफ़र करी मद्रास को। और यहाँ के रेड्डी फार्मर्स के यहाँ के थे, वो रेड्डी कोंडा माधव रेड्डी, वो चीफ जस्टिस बने, इसलिए मैं जज हुआ। चीफ जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी होने के बावजूद उन्होंने मुझे सिंगल बिठाया, सिंगल जज। जो डिस्ट्रिक्ट लॉयर था उसको सिंगल जज बिठाया, लेकिन क्या बोलते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता उनसे कई गुना भारी, कई गुना। वो बावड़ी में रहते हैं, हम समुद्र में रहते हैं। तो ये जो बावड़ी है, उनका ज्ञान इतना होता है कि दूसरे क्रूरता, छल कपट, दूसरों को फंसाना, यही काम होता है उनका। तो मैंने पहले दिन 2 जजमेंट दिए उसके संसद को कानून करने। एक फॉरेस्ट एक्ट का था, एक इनकम टैक्स का था, और भी कई मेरे जजमेंट है जिसके संसद को, यानी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस हमारा जजमेंट था, उसको भी संसद में कानून पढ़ना पड़ा। इंडियन पिनल कोड का पहला आईपीसी का सेक्शन हमने निकाला। गट्स थे, लोग क्या कहेंगे। अभी एक सर्वे हुआ है, मरने वाले लोगों को पूछा कि तुम्हारे जिंदगी में क्या गलती हुई ऐसा लगता है, तो वो बोले सुनो, ध्यान से सुनो। तो वो लोग, मरने वाले लोग बोले, तो सत्य बोलते हैं ना, जैसा अभी वो केरला का बच्चा बोला, सत्य बोल के लिख के गया ना, क्या आरएसएस है। तो वो लोग बोले कि हमारी गलती एक ही हुई कि लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में हम पड़ गए और हमारी जिंदगी बर्बाद हो। कुछ नहीं, तालियां नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। या तो मैं आपको समझ नहीं रहा हूं, या आपको वो जच नहीं रहा है। यू आर नॉट अप्रूविंग माई स्पीच। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। जब तक तुम मेरी मानोगी नहीं, तुम्हारा ना देश का भला हो। मुझे कुछ नहीं, अभी कुछ चंद दिन जीना है, लेकिन शाश्वत विचार दे के जीना है। किसी को डर के, मेरे कोई स्वार्थ के लिए, यदि मैं आरएसएस के खिलाफ नहीं लड़ता, मैं स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी आरएसएस के खिलाफ नहीं लड़ता, तो उसके तो कुछ भी मिलता ना। मुझे गवर्नरशिप आई, चीफ मिनिस्टरशिप आई, क्या क्या बोलूँ मैं, क्यों बोलूँ आपको। मैंने कहा जब तक मैं खुद एमएलए नहीं, मेरा एक भी एमएलए नहीं, तो मैं चीफ मिनिस्टर बन के तुम बोलेंगे उसके सिग्नेचर करूँ। देखो ना, ऑफर थी, गवर्नर की ऑफर थी, मैं रेसिग्नेशन दिया जजशिप का। तो ये चिमन लाल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, चिमन भाई, उनका फोन आया। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर का फोन आया, तो बोले कि भाई अच्छा हुआ तू रेसिग्नेशन दिया, मुझे एक अच्छा गवर्नर चाहिए, मैं वीपी सिंह को बोल के तुमको गुजरात का गवर्नर देता हूँ। मैंने कहा गवर्नर के लिए थोड़ा आया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सिर्फ हमारे अभी फुले शाह अम्बेडकर के फोटो मैंने देखे, प्रतिमा, सावित्रीबाई, तो हम फुले शाह अम्बेडकर का काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया। मैं सिटिंग जज था तब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाने की 80-85 की बात है। तो मैं तब सिटिंग जज करके भाषण कर रहा था, ये रामायण महाभारत दिखा रहे हैं ना, ये फिर से वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन क्या था? उनको बोला मैडम ने, यदि आप आरएसएस के साथ जाएंगे वो तो आतंकवादी है, क्योंकि नेहरू गांधी फैमिली समझती थी कि आतंकवादी है, और उन्होंने वैसे ही उनको लंबा दूर से रखा था।
तो जयप्रकाश नारायण बोलते हैं यदि वो आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूं। देखो ना, इतना बड़ा आदमी, ये समाजवादियों ने, हमारे सब दोस्त थे, गांधी नेहरू फैमिली का द्वेष यही इनका कैपिटल था। और संघ के साथ सरकार की 65-66 में संघ के साथ, और हमारे शरद पवार ने 78 में किया सरकार। 3 मिनिस्ट्री उनको दी थी, एक्साइज यानी पैसे की मिनिस्ट्री है, रेवेन्यू पैसे की मिनिस्ट्री है, और तीसरे के कोऑपरेटिव ऑफिस दिया था, संघ को दिया था, संघ के लोगों को दिया था। तो संघ के लोगों को एंट्री करने में हमारे लोग हैं। यदि वो संघ को पहचानते तब उन्होंने शायद नहीं पहचाना होगा। अभी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने कहा सांप को दूध पिलाएंगे तो परिणाम तो वही होगा ना। तो ये सांप है, सांप भी छोड़ो, इस पेरियार की स्लोगन थी सांप भी छोड़ो, जहरीला सांप छोड़ो, लेकिन आरएसएस वाला मत छोड़ो। अभी जब मैं ये बोलता हूं तो आप तो तालियां नहीं पीसते, लेकिन मैं मेरे मरने को दावत देता हूं, तो भी आपको मेरे बारे में भी संवेदना नहीं है, तो मन में तुम क्या कहते होगे, येड़ा है आदमी, ये अनफिट है जीने के लिए। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं यदि आपके साथ सच नहीं बोलूं, कौन बोले? मैं मरते समय मेरे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मुझे उसमें मरना ही नहीं। मुझे अभी पेंशन की ऑफर आई, तो पेंशन तो मैं लूंगा, लेकिन इसमें कितने रोड़े डालेंगे मालूम नहीं मुझे। तो पेंशन मैंने तय किया है। तो जिस गाड़गे बाबा को मैं मानता था, जिन्होंने कहा कि भटजी का पेट है देवल में, मंदिर में भटजी का पेट है, वहाँ ईश्वर नहीं है। जो कबीर ने कहा था, जो संत रविदास ने कहा था, मुझे तो सब जनता सुखी चाहिए, वही ईश्वर सेवा है। तो मैंने वो गाड़गे बाबा के ट्रस्ट को देने का मैंने तय किया है कि मेरी जो आएगी, मुझे डिफरेंस मिलने वाला है बड़ा। ऐसा हाईकोर्ट का पत्र है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन्होंने एक बार हाईकोर्ट को पाव लगाया उनको सब बेनिफिट मिलने चाहिए। अब ये मैं पब्लिक में क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं उसका दान करने वाला हूँ, ताकि मेरा भी मन ना बदले ना। और वो जो रोड़ा डाल रहे हैं, डालेंगे ही, वो छोड़ेंगे नहीं। हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पेंशन मिलने तक मरूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे किसी काम के लिए लगाना है। और काम क्या है? तो आरएसएस से छुटकारा पाने के लिए समाज को मदद करनी। तीसरी बात ऐसी है कि देखो तो तुम कि सिखों की दंगल हुई, सिखों को मारा, किसने मारा? बोलो ना, कुछ तो किसी ने पढ़ा होगा कि नहीं? दंगल की शुरुआत मारा किसको? इंदिरा गांधी को। और सिखों को मारने का प्लान किसने किया? आरएसएस ने। जो आरएसएस को इंदिरा गांधी दुश्मन कहती थी, उन्होंने प्रदेश के मैंने भाषण उनके सुने हैं। इसका मतलब मैं कांग्रेस से नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का सहानुभूतिदार हो गया हूं राहुल के कारण। इस उम्र में मैं उनके साथ हर दिन 25 किलोमीटर चलता था, राहुल के साथ। और मैंने बोला कि साला हम चलेंगे तो कुत्ता भी हमारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन तेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, इसलिए लोग इतने चल रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। बीबीसी वगैरह सबने मेरी मुलाकात ली कि इतनी उम्र में क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा मेरा मन साफ है, कोई बीमारी नहीं हुई, और मैं बीमारी को डरता ही नहीं। आएगी नहीं बीमारी जब तक तुम्हारा मन साफ है। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि जब तक हम समाज का विचार करेंगे तो आप मरेंगे भी नहीं।
आपको बीमारी भी नहीं होगी। इतना तो स्वार्थ देखो, इतना तो स्वार्थ देखने में क्या गलती है कि तुमको जीना है ना, अच्छा जीना है, निरोगी जीना है, तो समाज का काम करो और समाज को आरएसएस के चंगुल से बाहर निकालो। ये ईश्वर है जो जिनको मानना है तो जरूर मानिए, पर ईश्वर जब हम सबको देता है, हमको सब देता है, तो हम क्यों ईश्वर को दे? हमने एक नोट निकाल के दी, किसने दिया हमको? उसने दिए, जिसको दे रहे हैं क्या दीवाने है कि क्या दे? तो ये मेरी सलाह है कि जो जो बूढ़े हैं, आज से आरएसएस के चंगुल से समाज को निकालने का काम करो, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। अभी तुमको मरना है तो मैं कौन रोक सकता हूँ? तुमको मरना ही है घर में सड़के, तो मैं क्या, कौन रोक सकता है? ये जो मैं बोल रहा था कि गोल्डन टेम्पल के हमला करने का सलाह किसका है? किसका है सर? इन्होंने आंदोलन किया इंदिरा गांधी के खिलाफ आरएसएस ने कि गोल्डन टेम्पल में बहुत बड़ा शस्त्र साटा है, क्योंकि सिखों की इनकी दुश्मनी शुरुआत से है और सिख अच्छी तरह जानते हैं कि मनुवादी लोग क्या है। इन्होंने आंदोलन किया। सलाह देने वाले कौन थे? आईबी और मिलिट्री के प्रमुख भी वैद्य, आईबी का प्रमुख भी वैद्य और आरएसएस का प्रमुख भी वैद्य। लिंक कैसी देखो तो इंदिरा गांधी को तो मारना है, तो कैसे मारना है? सिख जैसी कट्टर जमात तो छोड़ेगी नहीं फिर। तो टेम्पल पर हमला करो, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया आरएसएस। इतना ही नहीं किया, तो वो जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, उसकी प्रतिकृति बना के अमृतसर के रेलवे स्टेशन के बाहर जलाए, उसको डिस्ट्रॉय किया। इन्हें सिखों को उकसाने का काम किया। किसने किया? आरएसएस ने। और ये करते समय उसके कारण भी ब्लू स्टार हुआ। ब्लू स्टार किसके सलाह पर हुआ? तो वही नेशनल एडवाइजर जैसा दोवाल है आज, वैसे उनका नेशनल एडवाइजर आरएसएस का था, आईबी का चीफ आरएसएस का था, आरएसएस का चीफ आरएसएस का था, मिलिट्री का चीफ भी आरएसएस का था। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ, उसके बाद राजीव गांधी ने ब्लू थंडर किया था। वो शादी स्टेप थी, वही स्टेप थी। उनका पानी बंद किया, उनका सब कुछ बंद किया था। कितने दिन रह गए मंदिर में? वहाँ अतिरिकी माइंड के थोड़े लोग थे, लेकिन मैडम को बोला गया, जैसा सद्दाम हुसैन के लिए अमेरिका ने पब्लिक किया था कि उसके बाद बहुत बड़ा साठा है, शस्त्रास्त्र है, अणुबॉम्ब है, कुछ मिला क्या? वही स्टाइल आरएसएस और अमेरिका एक ही है, वही स्टाइल की। और वही स्टाइल करके मैडम को बोला कि आपको हमला करना पड़ेगा, नहीं तो ये खलिस्तान मांगेंगे। मैडम ने हल्ला किया। हल्ला होने के बाद मैडम मंदिर में गई तो मैडम रोई, बोले धोखा हुआ। इनका काम एक ही है, धोखा देना। धोखा हुआ, क्योंकि मैडम आरएसएस को अच्छी तरह जानती थी। तो भी मैडम ने सिख जो उनके बॉडीगार्ड थे, वो बोले लोग सिख निकालो, अभी तो बॉडीगार्ड निकालो। तो उन्होंने बोले मैं नहीं निकालूंगा, और उनको रखा। उन्होंने उनको मारा। उसका भी एक गुण है, क्योंकि एक सिख वो अतिरिकी बोलने वाला था तो उसको मार दिया, ताकि सही क्या है वो बाहर ना आए। देखो ना तुम सब, चलो पठानकोट ले लो, हमला हुआ, उसका लॉजिकल एंड तक इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलवामा हुआ, उरी हुआ। उरी में तो अतिरेकी पुलिस स्टेशन में छिपे हुए, तो हमारा काम क्या था? जैसे मैंने बोला ब्लैक थंडर,
ब्लू थंडर या ब्लैक थंडर, उनके सब घेराव करके रखे, कितने दिन रहेंगे पुलिस स्टेशन में, और उनको पकड़ के ट्रायल करें। ट्रायल करते नहीं, लेकिन क्यों नहीं करते, तो सही क्या है वो देश के सामने नहीं आना चाहिए। पुलवामा में नहीं किया, पहलगाम में नहीं किया, और सिंदूर किया। सिंदूर का हमारे देश का एक भी आदमी सिंदूर के खिलाफ नहीं बोलता था, क्योंकि उसको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन ट्रम्प ने हमारा काम आसान किया है। ट्रम्प के खिलाफ क्या बोलेंगे? कल ही ट्रम्प ने बोला कि 6 नहीं 7 नहीं 8 एरोप्लेन उनके गिरे थे भारत के। तो सिंदूर में क्या हुआ? तो अभी उनकी वो बोलती बंद हो गई, क्योंकि ट्रम्प ने एक्सपोर्ट किया। हम बोलते तो हमको देशद्रोही बोलते। सिंदूर में इन्होंने जितना मार खाया, अभी आपके देश के सामने खिलाफ ये बोलना ठीक नहीं। ये क्यों किया सिंदूर इन्होंने? पहलगाम क्यों किया? पहलगाम के लोग 250-300 किलोमीटर अंदर आते हैं आर्टिलरी और मारते हैं। वही पुलवामा कितना सैकड़ों किलो आरडीएक्स पुलवामा के लिए लाया गया। वो आरडीएक्स नागपुर का था, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? देखो, ये हमारा देश और हम लोग सब भयंकर संकट में हैं। और ये संकट यदि आप लोग, अभी मैं आखिरी सिर्फ करके कुके मारा इतना कह के मैं जा रहा हूँ सर, आपने मुझे मौका दिया। ये सब मौके मेरे प्राध्यापक लक्ष्मण ने छीन लिए। क्या करें? मुझे रात को ऐसा होटल दिया, मैंने कहा कि मेरे खर्चे से मैं रहता हूँ, मुझे अच्छा होटल दिया। वह इतने कॉकरोच थे कि मेरे कपड़े में भी कॉकरोच है। क्या करें? दोस्त है हमारे। तो बाकी मुद्दा है करके मार। सभी बम शॉट 18 बम शॉट इनके परिवार ने करे थे, मुस्लिम बस्ती में मस्जिदों में करे थे, और सभी मुस्लिमों को अंदर लिया था। तब तक रघुवंशी करके एटीएस का प्रमुख था। तो हमारे दोस्त थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको ट्रांसफर किया और करके बुलाया। मैं खुद जाके भाषण करता था मुस्लिम बस्ती में। मुझे मुस्लिम क्या मूर्ख है क्या? अपने बस्ती में बम डाल रहे और अपने लोगों को मार रहे, कौन मारेगा? तो मैंने ऐसे कई भाषण किए। इतना ही नहीं, वो नांदेड़ में बम बनाते थे आरएसएस के लोग। देखो, जयप्रकाश नारायण का राजा है, वाजपेयी को फॉरेन मिनिस्ट्री दिया। वाजपेयी क्या बोलता था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं। अरे कुछ शर्म करो कि आरएसएस का आदर्श क्या ले रहे हैं आप। उन्होंने क्या किया कि मोसाद नाम की दुनिया में सबसे खतरनाक संगठन है इस्राएल का, तो अटल जी कहना इनको बिल्कुल लायकी के नहीं। इनको रिस्पेक्ट देना तो बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं। जो हमारे दुश्मन है उनको रिस्पेक्ट क्या देंगे? मोदी शाह को रिस्पेक्ट क्या देंगे? मारने दो। उनके हाथ में क्या है दूसरा? कुछ मारने की मदद सिवा तो कुछ नहीं है। मेरे पास से छीनने के लिए कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है, वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसको बोला, यार तू भी मर, या क्या फर्क पड़ता है? हम मरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम सच बोलना चाहते हैं। तो करकरी की बात कर रहे थे हम। थोड़ा मुझे इधर उधर भटकने का है, आदत है, लेकिन जो भी भटकूंगा वो मुद्दे पर ही भटकूंगा। तो जब करकरे ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया, उनके पास चार्ज जाने के बाद वहाँ एक मोटरसाइकिल, उसका चेसी नंबर सब गायब कर दिया था प्रज्ञा ठाकुर ने। तो भी उन्होंने कैसा निकाला, प्रज्ञा ठाकुर की मालकिन निकाली, उसको अंदर लिया।
उसको अंदर लिया, इतना ठोका, सब कबूल हो गई। उनकी कॉन्स्पिरेसी के मिनट्स है, और लैपटॉप में रिकॉर्डेड है मिनट्स। और क्या है मिनट्स? कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए हमें इस्राइल मदद कर रहा है, इसलिए हमें नेपाल मदद कर रहा है, और हिंदू हमें ये संविधान कबूल नहीं है। ये यानी ये सब गवर्नमेंट टॉपल डाउन करने के लिए इनकी कॉन्स्पिरेसी थी। सिर्फ गांधी को मारने की कॉन्स्पिरेसी अलग थी। ये सब करकरे ने ढूंढा, तो करकरे के खिलाफ आडवाणी ने मनमोहन सिंह के पास तकरार की। बोले कि करकरे हमारे संतों को हाथ लगा रहा है, क्योंकि आसिमानंद वगैरह सब उन्होंने कन्फेशन दिया था, आसिमानंद ने कन्फेशन दिया था। उसको मैजिस्ट्रेट ने बोला कि तुम किसके खिलाफ कन्फेशन दे रहे हो? आरएसएस के खिलाफ, भागवत के खिलाफ, वाजपेयी के खिलाफ, आडवाणी के खिलाफ तुम कन्फेशन दे रहे हो? तो हाँ बोले, मैं उनके खिलाफ कन्फेशन दे रहा हूँ। 3 दिन उसको दिए विचार करने के लिए, और उन्होंने कन्फेशन दिया कि हमने जो बॉम्ब शूट करे वो आरएसएस के कहने पर करे। तो फिर ये सब कॉन्स्पिरेसी जब बाहर आई तो करकर के खिलाफ कंप्लेंट हुई। तो मनमोहन सिंह ने करकर को बुला लिया, भाई क्या है? उन्होंने सब पेपर्स उनके सामने रखे। तो वही पेपर्स लेके करकरे को मनमोहन सिंह की गलती, उनका जो नेशनल एडवाइजर था नारायणन करके, उसको साथ देके ये सब पेपर्स लेके करकरे को आडवाणी के पास भेजे। वही तय हुआ कि करकरे को मारना पड़ेगा। वो मुस्लिम आतिरी के आए थे, वो तो पाकिस्तान से आ रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो जो आए थे, वो टारगेट था उनका ओबेरॉय और ताज, सिर्फ टारगेट नहीं था। तो उन्होंने तय किया था जो भी उनका काम था, तो उसका फायदा उठाने का आईबी ने तय किया। बहुत खतरनाक जमात है, मोसाद की ट्रेनिंग है ना। इवन प्रमोद महाजन का ये मोसाद का ट्रेनिंग था, तो मोसाद के ट्रेनिंग के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो सब आने वाले आतंकवादियों का प्रोग्राम सीक्रेट रखा। अमेरिका हमको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन दे रही थी कि वो निकले हैं, वो गुजरात बॉर्डर पर आए हैं, उन्होंने शिप बदला है, उनके पास जो कुछ है वो सब अमेरिका हमको बोल रही थी। किसको बोल रही थी? आईबी को बोल रही थी, रॉ को बोल रही थी, नेवी को बोल रही थी। लेकिन ये सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोता रहा। जब उनको हमला हुआ तो करकरे और हमारे होम मिनिस्टर साथ में बैठे थे। कंट्रोल रूम का उसका फोन आया कि तुम बेटी स्टेशन जाओ, कामा हॉस्पिटल जाओ। कामा हॉस्पिटल में हिंदू आतंकी छिपे हुए थे। इस्माइल और कसब का टारगेट था, कसब नहीं था उसमें, सिर्फ इस्माइल टारगेट था। ओबेरॉय और ताज। तो करकरे को ऐसे गली में भेजा कंट्रोल रूम ने, जिसके पेपर्स मेरे दोस्त के पास थे, कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड था। उसको धमकी दिया कि तुम्हारे खिलाफ हम देशद्रोह का गुनाह करें। वो घबरा गया। घबराने वाले लोग ज़्यादा है। उसका प्रमोशन था, बड़ा पुलिस ऑफिसर है। उसने वो सब पेपर उनको दे दिए और ओरिजिनल पेपर दे दिए। तो कंट्रोल रूम से जो मैसेज आता था उसके मुताबिक तीनों बहुजन समाज के पुलिस ऑफिसर गए। करके तो उनका दुश्मन था, 2 और गए और तीनों को हिंदू अतिरेकी ने मार डाला। अभी उनके पास उनके जैकेट थे बुलेट प्रूफ, तो एक भी गोली अतिरेकी की उनके बॉडी पर जख्म नहीं। सब लोग सो रहे हैं। हिंदी समझता नहीं, मैं क्या करूं? अंग्रेजी में नहीं समझता और मुझे तो आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो करकरे को एक भी जख्म नहीं थी सामने से। करकरे को जख्म कहा थी, पुलिस के पिस्तौल से करकरे को यहाँ मारा था, क्योंकि जैकेट था ना,
यहाँ से मारा और उसके सब लंग्स वगैरह सब फट गए थे। तो कोर्ट में खटला शुरू हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई। बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बोला कि इस्माइल और कसाब के बंदूक से आई हुई गोली से उनको जख्म नहीं है, वो एक्सपर्ट बोला। तो फिर किसने मारा? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। किसने मारा ये अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। हमने पिटीशन किया, हमने सब कोशिश की, कोर्ट ने भी उनको डांटा। कोर्ट हमारा थोड़ा दोस्त था, तो बोला कि ये एक्सप्लेन करो कि उनकी जख्म नहीं है तो उनको किसने मारा। वो कोर्ट भी बाद में ठंडा पड़ गया। तो मैंने उसको पूछा, यार रिटायरमेंट के बाद पूछा, तो क्या हो गया पिटीशन, हमारा पिटीशन पे? बोले छोड़ो ना, बात मत। तो एवरी बड़ी इज अंडर देयर प्रेशर। वो बोले होंगे दुनिया में हमारी नाचक क्यों होंगी, आप क्या कर रहे हैं? वो री इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो तो सच बाहर आएंगे ना कि कर को यहाँ से मारा है और पुलिस के पिस्तौल से मारा है। तो ये छिपाने के लिए जज को भी प्रेशराइज किया, और बाकी जो जजेस उनके मानने वाले थे उनके सामने सुप्रीम कोर्ट तक गया। लोहिया की बात बस अभी 1 बजे है, एक भी लोहिया की बात बताता हूँ। भाई क्यों बता रहा हूँ? आरएसएस क्या है समझो। आप भी आपस में बोल रहे हैं, आप और गिरीश, समझो हम क्या कोशिश कर रहे हैं। क्यों मारा लोहिया को? लोहिया ने बोला ये सब तड़ीपार इधर से उधर उनको भेजा था ना। कौन तड़ीपार? अमित शाह। तो वो तड़ीपार के केस लोहिया के सामने थी, पहले उपाध्याय जज के सामने थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थी कि जिस जज के सामने वो केस है उसी को ट्रांसफर नहीं करना, तो भी उसको ट्रांसफर किया उपाध्याय को। वो मुझे मिला, मैंने कहा क्यों हो गया? बोले सर सुप्रीम तो डिस्ट्रिक्ट जज की औकात तो इतनी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और वो मोहित शाह करके चीफ जस्टिस था, गुजरात का ही था, वो शाह का दोस्त था या रिलेशन था, तो उसने उसका ट्रांसफ़र किया। और लोहिया के सामने केस आई। लोहिया को बोले कि 100 करोड़ ले लो नहीं तो मरो। तो लोहिया ने उसके लोग मेरे पास भेजे थे। अभी वो लोग बोलते हैं मेरे, क्या अभी उसके बारे में बोलना छोड़ दो। तो भाई कैसे छोड़ो? 2 लोग मेरे पास आए, एक डिस्ट्रिक्ट जज था और एक डिस्ट्रिक्ट लॉयर था, दोनों को मार डाला। अभी तक मुझे नहीं मारा। और लोहिया को ये ऑफर देने के बावजूद जिन्होंने लोहिया के लिए झूठ बोला उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया। जजेस विटनेस थे, और चंद्रचूड़ बदमाश वो जजमेंट देता है कि ये केस हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। क्यों? जजेस बोल रहे हैं कि हम थे उसके साथ और वो नहीं थे उसके साथ। अभी आप ये सब सच बोलने के बाद आप बहुत डरेंगे। अरे यार आरएसएस तो क्या डर के क्या करेंगे तुम, ये मुझे बोलो। डर के घर में सड़क में मरेंगे ना। लेकिन मैं आपको इतना बोलने के बाद, सत्य बोलने के बाद मरूंगा तो उसमें कुछ पुरुषार्थ है ना, है कि नहीं? कुछ नहीं। मैं इनको बोल रहा था, हर गोपाल को भी बोला, यार दिक्कत तो कम्युनिकेशन की है। मैं जब ऐसा भाषण करता हूँ लोग उछलते हैं। जहाँ मैं भाषण करता हूँ, हिंदी में करता हूँ, मराठी में करता हूँ, तो लोग उछल जाते हैं। तुम लोग तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो भी तो करकेरे को मारने का पर्पस क्या था ये मैंने आपको बताया। मैं आपकी रजा लेता हूँ। इन नटसेल आरएसएस जैसे हमारे दुश्मन कोई नहीं। बाद में कैपिटलिस्ट का सोचेंगे, कैपिटलिज्म का बाद में सोचेंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट को मदद करने वाली यही है। आप टीवी देखते कि नहीं? टीवी पे सलमान थम्सअप पीता है, आकाश में उड़ता है।
उठता है कोई? तो ये कैपिटलिस्ट के गेम है। और टीवी पे सीरियल दिखाते हैं, कोने में एक मंदिर दिखाते हैं, वो पूजा करती है, उसका कल्याण होता है। तो ये सेठ जी भट्ट जी की कॉन्स्पिरेसी। जय भारत, जय संविधान।